Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the next topic of unit number 2, that is the shearing bridge, high voltage and relative permittivity. This is the lecture plan 20 of the subject EMI. As we have discussed in our last lecture, measurement of self-inductance by using Maxwell's inductance bridge, Maxwell's inductance capacitance bridge and Hayes bridge. So in this lecture, we will discuss the measurement of capacitance. Shearing bridge is one of the most commonly used AC bridge for measurement of capacitance. It can be also used for measurement of dissipation factor, properties of insulators, capacitor bushing, insulating oil and other insulating materials. The shearing bridge works on the principle of balancing the load on its arm. यही प्रिंसिपल हमने मैक्सवेल में भी यूज़ किया था और हेज में भी यूज़ किया था. This is the circuit diagram of shearing bridge. As we can see from the diagram, there is a series combination of resistance and capacitance in the branch AB, parallel combination in the branch CD, a pure resistance in the branch BC and a capacitance in the branch AD. There is a detector to find out the balance condition of the bridge circuit or to provide the null indication. There is a power supply E, that is the AC supply. It is used to provide the power to the circuit. So it is the basic circuit diagram for shearing bridge. Next is the description of the circuit diagram. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आर्म ए बी है, इसमें कि C1 लगा हुआ है. सो C1 इज द कैपेसिटर whose capacitance has to be determined. So C1 is the unknown capacitance जिसको हमें निकालना है. And small r1 क्या है? Small r1 is a series resistance that represent the loss of the capacitor C1. Small r1. Now C2 is a standard capacitor. What does it mean by standard capacitor? It means the capacitor is free from the losses. Next is the branch BC. BC में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है. R3 क्या है? R3 is a non-inductive resistance. In the branch CD, there is a capacitance C4. It is a variable capacitor and it is connected in parallel with the variable resistance R4. So it is the circuit diagram. कितना वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है? The voltage between the point A and B or the branch AB is the E1. Between the A and D is E2. Between the B and C is E3 and between the C and D is E4. So it is the voltage drop across the various arms. Now next is the बैलेंस कंडीशन. जैसा कि हमने मैक्सवेल ब्रिज में भी यूज़ किया था और हेज ब्रिज में भी यूज़ किया था, सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे. हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस कंडीशन से. और उसके बाद हम डेरिवेशन में वैल्यूज़ को पुट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस. व्हेन द ब्रिज इज इन द बैलेंस कंडीशन, zero current passes through the detector, which shows that the potential across the detector is 0. This is called as the balance condition. In the balance condition क्या मिलता है हमें? Z1 Z4 equals to Z2 Z3. It means the multiplication of opposite impedances are equal to each other. तो अब हम यहाँ पर Z1 की वैल्यू निकालेंगे, Z4 की, Z2 की और Z3 की, और उसको हमें यहाँ पर पुट करना है. तो Z1 क्या है? What is the Z1? Z1 is the impedance of the arm AB. So it is the Z1. Z1 मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है. तो Z1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस 1/j ओमेगा C1. दिस इज द Z1. देन Z2 क्या हो जाएगा? Z2 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म AD. तो यहाँ पे केवल एक कैपेसिटेंस C2 लगा हुआ है, तो Z2 क्या हो जाएगा? 1/j ओमेगा C2. Z3 क्या है? Z3 इज द इम्पिडेंस ऑफ आर्म BC और यहाँ पे केवल एक रेजिस्टेंस लगा है, तो Z3 क्या हो जाएगा? इट इज द R3. And what is the Z4? Z4 is the impedance of the arm CD. तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे टू आवर बैलेंस कंडीशन इक्वेशन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिला हमें? Z1 की वैल्यू हमने पुट की R1 प्लस 1/j ओमेगा C1.
अब Z4 क्या था? Z4 वॉज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C4 एंड R4। तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? R4 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा C4 R4। एंड व्हाट इज द Z2? Z2 इज 1 अपॉन j ओमेगा C2। एंड व्हाट इज Z3? Z3 इज द R3। तो इस तरीके से हम चारों आर्म्स के लिए इम्पीडेंस निकालेंगे। आर्म AB का Z1 हो गया, आर्म AB का Z1 हो गया, आर्म AD का Z2, CD का हो गया Z4 और BC का हो गया Z3। तो इस तरीके से हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नोटेशंस को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके के नोटेशन हम सर्किट में यूज़ करेंगे सेम नोटेशन वी हैव टू यूज़ इन द डेरिवेशन ऑल्सो। अब इसके बाद क्या करना है? वी हैव टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट वो होंगे जिसमें कि जी ओमेगा टर्म नहीं आएगा। सो व्हेन वी सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट वी विल गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमें? R1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C1 इंटू R4 इक्वल टू दिस। हमने j ओमेगा पार्ट को सेपरेट करने के लिए इस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड R1। तो जैसे ही हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे टू द जीरो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बोथ। सो स्मॉल r1 की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉल r1 इज R3 C4 अपॉन C2। And what is the value of unknown capacitance C1? This is a C2 into R4 upon R3. तो यहाँ पर हमने क्या किया? We have derived the value of unknown parameter in terms of the known parameters. तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है। दोनों इक्वेशन में R1 के लिए और C1 के लिए दोनों में कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। ये मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पर कंपोनेंट्स के वैल्यू पर नहीं आएगा। सो इट इज़ द डेरिवेशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द स्मॉल R1, दैट इज द लॉसेस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ C1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फेजर डायग्राम ऑफ शेयरिंग ब्रिज। जैसा कि आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम बना हुआ है। इसके पहले हमने मैक्सवेल ब्रिज में भी यूज़ किया हुआ है और हेज ब्रिज में भी यूज़ किया है। फेजर डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। व्हाट इज़ द फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनी सर्किट। अब यहाँ पर हम AC पावर यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे करंट और वोल्टेज में चेंज होंगे दैट विल हैज़ टू बी ड्रॉ यूजिंग फेजर डायग्राम। तो ये जो फेजर डायग्राम है इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से याद नहीं कर सकते। वी हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो हमें कौन से कंसेप्ट याद रखना ज़रूरी है? फर्स्ट इज द कि जब भी रेजिस्टेंस हम वहाँ पे कंपोनेंट लगा होगा, इन द रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट हैज़ टू बी इन सेम फेज, दोनों एक ही फेज में रहेंगे। उसी के बाद अगर कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटेंस में वोल्टेज लैग करेगा और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे कि हम रेजिस्टेंस के लिए बनाएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या रहेगा? अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में जहाँ पर आपने करंट लिया है वहीं पर आपको वोल्टेज भी लेना रहेगा। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। और इंडक्टर में क्या रहेगा? इंडक्टर में करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो इस तरीके से हम इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके फेजर डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज लैग करेगा, इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करेगा और रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज में रहेंगे। सो वी हैव टू यूज़ दिस कंसेप्ट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर वी हैव टेकन द सर्किट डायग्राम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फेजर डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्म दैट इज द AB। तो जैसे कि AB में हम देख सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटेंस C1 लगा हुआ है। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। हमें स्टार्ट कैसे करना है? बाय टेकिंग द रेफरेंस फेजर। जैसे कि हमने पहले भी बनाया था, हमें कहाँ से स्टार्ट करना रहता है? हम एक रेफरेंस फेजर लेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने I1 को
रेफरेंस फेजर लिया है। I1 क्या है? द करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच AB। अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज में रहेगा। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 विल बी I1 R1 एंड द वोल्टेज अक्रॉस द C1 इज I1 अपॉन ओमेगा C1। तो ये दोनों को हम प्लॉट करेंगे विद रेफरेंस टू I1। तो अगर हमने I1 ऐसे प्लॉट किया है तो I1 R1 भी सेम फेज में रहेगा और I1 ओमेगा C1 जो क्या है वोल्टेज है तो ये लैग करेगा विद द 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ये दो कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे एंड द टोटल वोल्टेज क्या रहेगा? टोटल वोल्टेज क्या हो गया? E1 इट इज इक्वल्स टू द I1 R1 प्लस I1 अपॉन ओमेगा C1। तो E1 कैसे मिलेगा? इन दोनों के को हम पैरेलली ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन होंगे वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द वैल्यू ऑफ E1। सो एट द पॉइंट वेयर बोथ द वेक्टर्स आर ज्वाइनिंग दिस इज द E1। सो E1 इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच AB। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा हमें? I1 R1 प्लस I1 अपॉन ओमेगा C1। तो ये हमने किसके लिए बना लिया? फॉर द आर्म AB। ये हम जो बनाते हैं फेजर डायग्राम दिस इज फॉर द बैलेंस कंडीशन। हम जो भी यहाँ पे कंडीशंस लेके चलेंगे वो कौन सी वाली है? बैलेंस कंडीशन से। अब इसके बाद हम बनाएंगे ब्रांच BC के लिए। अब ब्रांच BC में आप देखो क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3। अब R3 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? दिस विल बी द, अगर हम मान ले I3 इंटू R3 कैपिटल R3 और यहाँ पर करंट जो भी फ्लो हो रहा है सपोज इट इज़ I3 तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे। अब जैसे कि हम बैलेंस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं सो इन द बैलेंस कंडीशन यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो करंट यहाँ से जाएगा दैट इज द I1 द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द BC ऑल्सो। तो अगर यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है करंट इन द ब्रांच AB तो BC में भी कितना करंट फ्लो होगा? I1 ही फ्लो होगा जैसा कि डायग्राम में भी लिखा हुआ है। तो इसके अक्रॉस हम कितना ड्रॉप लिख सकते हैं? दिस विल बी I1 R3। सो इन दिस केस जो I1 बना हुआ है I1 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसी लाइन पर हम क्या ले सकते हैं? वी कैन टेक द I1 R3 ऑल्सो। जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है एज वी कैन सी फ्रॉम हियर I1 की वैल्यू क्या हो गई? I3 के बराबर हो गई। तो जहाँ पे हमने जिस लाइन पे I1 ड्रॉ किया उसी लाइन पे क्या आ जाएगा? I1 R3। तो ये क्या हो गया? दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3। तो अब हमने दो ब्रांच के लिए बना लिया है AB के लिए और BC के लिए। अब इसके बाद हमें बनाना है AD के लिए। AD में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? AD इज E2। AD के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? दिस इज द E2। और बैलेंस कंडीशन में क्या रहता है? E1 इक्वल्स टू E2 एंड E3 इक्वल्स टू E4। तो जहाँ पर भी हमने E1 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट E2 क्योंकि बैलेंस कंडीशन में दोनों सेम रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर क्या रहेगा? कैपेसिटर में क्या रहेगा? करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन यूज़ करेंगे AD में निकालने के लिए। एक तो बैलेंस कंडीशन के हिसाब से E1 इज इक्वल्स टू E2 तो जहाँ पे E1 है वहाँ पर E2 आ जाएगा। हमें वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? दिस विल बी इक्वल्स टू I2 अपॉन ओमेगा C2। ये इसका वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन अब हमें करंट भी ड्रॉ करना है तो करंट कैसे जाएगा? करंट विल बी लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो जैसे कि हम यहाँ पे E2 लिख चुके हैं, हमें ये E2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? दिस इज इक्वल्स टू I2 अपॉन ओमेगा C2। तो अब जो करंट बनेगा दैट विल बी एट द 90 डिग्री लीडिंग फ्रॉम दिस वोल्टेज। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है जैसे कि यहाँ पे E2 बना चुके थे हम। अब जो I2 बनेगा, I2 क्या है? दिस इज द करंट थ्रू दिस ब्रांच AD। तो I2 जो रहेगा दैट विल बी एट द 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज I2 अपॉन ओमेगा C2। यानी कि कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट कैसे रहेंगे? विद द 90 डिग्री फेज। तो यहाँ पर हम I2 ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक हमने ब्रांच AD के लिए बना लिया। सो नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज CD। अब आप CD में देखिए CD में करंट कैसे फ्लो हो रहा है?
जो करंट यहाँ से आएगा दिस इज़ द I2। और अगर हमें मान लें कि डिटेक्टर बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू दिस ब्रांच CD ऑल्सो। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है I2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल्स टू I4, दिस इज राइट हियर लाइक। एंड द वन मोर थिंग दैट I2 कैसे डिवाइड हो रहा है, इसका एक पोर्शन जा रहा है कैपेसिटर में और एक पोर्शन जा रहा है रेजिस्टेंस में। सो वी कैन राइट दैट I2 is equals to IC plus IR, the current through the capacitor and the current across the resistance। तो यहाँ पर जो करंट I2 जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसके बाद C4 और R4 आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, E4। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E4 will be equals to IR R4, this is the voltage drop across the resistance R4, and it is also equal to the voltage across the capacitor C4। So it can be written like this, E4 is equals to IR R4 plus IC upon omega C4। यानी जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होगा, एंड दिस इज सेम एज E4। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो वन मोर कंडीशन हियर दैट इन द बैलेंस कंडीशन क्या मिलेगा हमें, E3 इक्वल टू E4। जो E3 हम निकाल चुके हैं वहीं पर क्या मिलेगा हमें, E4 मिलेगा। अब E3 हमने कहाँ लिखा हुआ है, हियर राइट E3 हियर, जैसे कि हमने निकाला हुआ था। E3 क्या था, E3 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, जिसको हमने यहाँ पर लिया हुआ था, दिस इज द E3। तो जहाँ पे E3 लिखा है वहीं पर क्या आ जाएगा, E4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, E4 के लिए मिल गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे द करंट फ्रॉम द कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम फेज में रहेंगे वोल्टेज करंट, और कैपेसिटेंस में जो करंट रहेगा वो लीड करेगा। सो इन द नेक्स्ट डायग्राम वी कैन सी दैट, जैसे कि यहाँ तक हमने बना लिया है, I2 इक्वल्स टू I4 हम लिख चुके हैं, I1 इक्वल टू I3 हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वी हैव टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट इन द ब्रांच CD। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो IR आएगा। IR यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि जहाँ पर भी E4 है वहीं पर IR भी रहेगा। E4 किसके बराबर है, E3 के बराबर। सो इन द रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज IR R4, इट इज़ इक्वल्स टू दिस। तो इस पे हमने IR R4 लिया है, तो जहाँ पे जिस फेज में वोल्टेज रहेगा उसी फेज में करंट IR भी रहेगा, तो दोनों सेम फेज में रहेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी E4 रहेगा, E4 मीन्स IC अपॉन ओमेगा, ये दोनों वैल्यू सेम है। IR R4 एंड IC अपॉन ओमेगा C4 हैव द सेम वैल्यू। तो जहाँ पे E4 एग्जिस्ट करेगा उससे 90 डिग्री के एंगल पे क्या मिलेगा हमें, IC मिलेगा। तो आप देखो डायग्राम में बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने IC ड्रॉ कहाँ किया हुआ है, एट द 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज E4, यानी कि कैपेसिटेंस में वोल्टेज जो रहेगा वो 90 डिग्री से लैग करेगा। E4 की वैल्यू ये वाली है और IC की वैल्यू ये वाली है, यानी कि IC अपॉन ओमेगा C4 और IC में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ तक हमने सारी ब्रांचेस के लिए बना लिया, AB के लिए, BC के लिए, CD के लिए और AD के लिए। सारे कंपोनेंट्स हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि I2 क्या है, I2 क्या चीज़ है, I2 इज इक्वल्स टू IC प्लस IR। तो IC को हमने एक्सटेंड किया और यहाँ से IR को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू द IC प्लस IR इक्वल्स टू I2। और I2 क्या है, I2 इज इक्वल्स टू I4, यानी कि हमें I4 को अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में सेम रहेंगे करंट, I1 इक्वल टू I3 एंड I2 इक्वल्स टू I4। तो यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, सारे करंट कंपोनेंट्स और वोल्टेज कंपोनेंट निकाल लिए। इसके बाद हम फाइनली क्या निकालेंगे, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। अब टोटल वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे कितने सप्लाई लगी है, दिस इज द सप्लाई E कनेक्टेड, यहाँ पे एक AC सप्लाई लगी हुई है, जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर AC सप्लाई लगी है E, और E की वैल्यू क्या हो गई, E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, एडिशन ऑफ दीज टू और दीज टू। तो हम किन्हीं भी दो वोल्टेज को ऐड करके टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, हमने क्या क्या कंपोनेंट्स निकाल लिए थे, हम ऑलरेडी E3 निकाल चुके हैं और E1 निकाल चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करके हमें क्या मिलेगा, वी विल फाइंड आउट द E। एक बार और देख लो इसको आप। जो हमने फेजर डायग्राम E3 के लिए बनाया था और E1 के लिए बनाया था, E3 किसके बराबर है, E4 के बराबर, और E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो इन दोनों फेजर्स को हम एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों फेजर्स जहाँ ज्वाइन होंगे वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, दैट इज द टोटल वोल्टेज E। एंड E क्या रहेगा, E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। तो इस तरीके से ये इसका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ये बनाना है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, सही ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम AB के लिए बनाएंगे, फिर BC के लिए, फिर AD के लिए और लास्ट में CD के लिए। अब CD में यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। सो करंट जो जितने फैक्टर्स करंट के मिल रहे हैं, हमें वो करंट फैक्टर्स भी यहाँ शो करने रहेंगे। ओके, सो I2 इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, IC एंड IR, जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है फेजर डायग्राम में। और उसके बाद टोटल वोल्टेज E कैसे निकालेंगे, एडिशन ऑफ द E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। अब बैलेंस कंडीशन है तो दोनों सेम रहेंगे। E1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, E2 के बराबर, और E3 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, E4 के बराबर। तो इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करके हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ शेयरिंग ब्रिज। Now next is the dissipation factor. In the shearing bridge, the dissipation factor can be obtained with the help of the phasor diagram. जैसे कि अभी हम फेजर डायग्राम बना चुके हैं, इसी फेजर डायग्राम को यूज़ करके हम डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं। डिसिपेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, D1 इक्वल्स टू 10 डेल्टा। What is the dissipation factor? Dissipation factor determines the rate of loss of energy that occurs because of the oscillation of the electrical and mechanical instrument. तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके कारण यहाँ पे जो लॉसेस होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द डिसिपेशन फैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या है, D इक्वल्स टू या D1 इक्वल्स टू 10 डेल्टा। डेल्टा क्या है, इट इज़ द एंगल लाइक दिस, इसको हम डेल्टा लेके चलते हैं। अब 10 डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा को 10 डेल्टा को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, I1 स्मॉल r1 अपॉन I1 अपॉन ओमेगा C1। इसकी वैल्यू I1 स्मॉल r1 है और ये वाली I1 अपॉन ओमेगा C1 है। डिवाइड करेंगे 10 डेल्टा निकालने के लिए तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ओमेगा C1 स्मॉल r1। हम C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, स्मॉल r1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सो इट इज़ द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ शेयरिंग ब्रिज, ओमेगा C4 इंटू R4। So it is one more parameter that can be measured by using शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से हम दो पैरामीटर्स नॉर्मली मेजर करते हैं जिसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज द कैपेसिटेंस एंड द अदर इज डिसिपेशन फैक्टर। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिसिपेशन फैक्टर। एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग ब्रिज, बैलेंस इक्वेशंस आर फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हमने अभी इक्वेशंस डिराइव किए हुए हैं, C1 के लिए भी और R1 के लिए भी, दोनों में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आ रहा है। सो दीज आर द फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टर्म्स। द अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिज इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द अदर ब्रिजेस। नाउ नेक्स्ट इज द हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। जो हमने अभी डिस्कस किया था दैट वाज लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। द लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज हैज several disadvantages that because of this reason the high voltage and high frequency are required for measuring the small capacitance। जो लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी शेयरिंग ब्रिज। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज, यहाँ पे शो किया हुआ है हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। द हाई वोल्टेज सप्लाई इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर जिससे कि हमें सप्लाई मिलेगी। हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर को यूज़ किया हुआ है। एंड देयर इज अ वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज अ डिटेक्टर। यहाँ पे हमने डिटेक्टर के लिए क्या यूज़ किया है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। द हाई वोल्टेज वर्किंग कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड इन द आर्म AB एंड AD।
यहाँ पे C1 और C2 कैसे है? दीज आर द हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स जो हाई वोल्टेज में काम कर सकते हैं. The impedance of arm AB and AD are very high as compared to the arm BC and CD. Impedance means the opposition offered by the circuit in the flow of current. तो आर्म AB और AD को हमने हाई इम्पिडेंस पे रखा हुआ है एज कम्पेयर टू द आर्म BC एंड CD. जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में पॉइंट C को हमने ग्राउंड किया हुआ है. द पॉइंट C इज अर्थ. The impedance of the arm AB and AD is kept high so that the high supply will not affect the potential across the arm BC and CD. The potential across the detector is also kept low. The spark gap sets places on each arm for preventing the dangerous high voltage which appears across the arm BC and CD. बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर. यहाँ पे हमने स्पार्क गैप रखा हुआ है इन द ब्रांच BC अक्रॉस द आर्म BC एंड CD, जिससे कि वहाँ पर हाई वोल्टेज के कारण अगर वहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे स्पार्किंग ना हो या हाई वोल्टेज वहाँ पे अपीयर ना हो पाए. द पावर लॉस इज वेरी स्मॉल इन द आर्म AB एंड AD बिकॉज ऑफ द हाई इम्पिडेंसेस ऑफ दीज आर्म्स. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ high voltage sharing bridge. If it is specified, then only you have to draw this diagram, otherwise you have to draw low voltage sharing bridge. Now next is measurement of relative permittivity with sharing bridge. The sharing bridge is also used for measuring the relative permittivity of the dielectric material. The determination of relative permittivity involves the measurement of capacitance of a small capacitor with the specimen as dielectric. The capacitor with specimen as dielectric is formed by using either a parallel plate or a concentric cylinder configuration for the electrodes. The relative permittivity of the parallel plate arrangement can be expressed as epsilon r equals to CSD upon epsilon 0A, where CS is the measured value of capacitance by considering the specimen as a dielectric. Small d is the spacing between the electrodes, capital A is the effective area of electrodes, and epsilon 0 is the permittivity of free space. So, the other method for calculating the relative permittivity of the specimen is explained below. This method avoids the necessity for close contact between the electrodes and specimen that uses a pair of solid electrodes between which the specimen is slipped. The capacitance of the arrangement is measured, the specimen is then removed, and the spacing between the electrodes is adjusted by means of micrometer adjustments until the capacitance is the same as before. The relative permittivity of the specimen depends on the thickness of the specimen and the spacing between them and the electrode. So, as the diagram shows, the capital C is the capacitance between the electrodes with the specimen. Capital A is the area of electrodes. Small d is the thickness of specimen. Small t is the gap between the specimen and electrodes. And small x is the reduction in the separation between the two measurement. हम यहाँ पे दो मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे और दोनों कंपेयर करेंगे. सो इट इज़ द रिडक्शन इन द सेपरेशन जो हमने चेंज किया है सेपरेशन को सेकेंड टाइम. दिस इज़ द स्मॉल एक्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में इलेक्ट्रोड्स है, स्पेसिमेन दोनों के बीच में है. स्मॉल टी क्या है यहाँ पे? गैप बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द इलेक्ट्रोड्स. सो where CS is the capacitance of a specimen, C0 is the capacitance between the space because of the specimen and electrodes. Capital C is the effective capacitance of CS and C0. So the capacitance between the specimen and the electrodes can be represented as CA equal to CS C0 upon CS plus C0. हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. CS की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, और C0 की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी. सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन एप्सिलॉन आर टी प्लस डी. सो इट इज़ द कैपेसिटेंस
or the effective capacitance of CS and C0. CS is the capacitance of specimen and C0 is the capacitance due to the space between the space and electrodes, between the specimen and electrodes. When we have removed the specimen and the spacing is again adjusted to give the same capacitance, the expression for capacitance becomes C equal to epsilon 0 A upon T plus D minus X. By equating both the formulas that we have derived earlier and right now, epsilon 0 A upon T plus D minus X equals to epsilon R epsilon 0 A upon epsilon R T plus D. पहला वाला फॉर्मूला हमने कब निकाला था, जब हमने वहाँ पर स्पेसिमेन रखा हुआ है, दैट वी हैव डिराइव्ड हियर. और उसके बाद सेकंड ये जो फॉर्मूला निकला है, दिस इज़ व्हेन वी हैव रिमूव द स्पेसिंग. और हमने फिर से इसको व्हेन वी हैव रिमूव द स्पेसिमेन एंड द स्पेसिंग इज एडजस्टेड टू गेट द सेम कैपेसिटेंस. इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द relative permittivity epsilon r? It is equals to d upon d minus x. So this is the method that how sharing bridge can calculate the relative permittivity. The insulating properties of electric cables and equipment can also be measured through the sharing bridge. So this is all about the sharing bridge. We have discussed the circuit diagram of sharing bridge, then balance condition, then derivation for the unknown capacitance and resistance, then phasor diagram for sharing bridge, then high voltage sharing bridge, and then measurement of relative permittivity with sharing bridge. We have also derived the formula for the dissipation factor of sharing bridge. So it's all about the sharing bridge. Thank you.